Hello dear learners, welcome back to the Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 7th of November and all the important articles are here as follows. ठीक है? Without any delay, let's see. पहला है Center says right to vote not same as freedom of voting. ठीक है? This is a statutory right and freedom of voting is a fundamental right. ठीक है? तो ये दो सेम चीजें नहीं है ऐसा सेंटर कहती है. ठीक है. सेकंड है अक्यूज शुड गेट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन नोन लैंग्वेज. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने किसी भी अक्यूज को कहीं से भी मतलब आपने उनको पकड़ा है और आपको उनके ग्राउंड जो है उनके नेटिव लैंग्वेज या फिर उनको जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में बताना है. ठीक है. लेट्स से कोई वेस्ट बंगाल से तो अगर उनको आपने अरेस्ट किया है तो यू शुड make sure that if that person does not understand English or Hindi, you should convey his charges in Bengali or in any other language that they understand. ठीक है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. ठीक है. थर्ड इज Comptroller and Auditor General plans to create 2 new cadres for more centralization. तो 2 और cadres जो है अंडर CAG जो है ये बनने वाला है ऐसा प्लान किया जा रहा है. ठीक है. So these are the 3 important news. पहला हम देख लेते हैं. Center says right to vote not same as freedom of voting. ठीक है. The right to vote is a statutory right conferred under section 62 of Representation of People Act 1951. Freedom for voting ये आता है under the right to expression under Article 9(1) clause A of the Constitution. ये उन्होंने कहा है. ठीक है. देखते क्या आर्टिकल आया है. The center has argued Supreme Court that right to vote in election is different from freedom of voting, as while one is mere a statutory right. That means right to vote is a statutory right. लेकिन दूसरा freedom of voting जो है ये fundamental right है under Article 19(1) clause A के अंदर. ठीक है. The case is listed before a bench headed by Justice Suryakant on hearing on Thursday. However, the bench did not assemble. ठीक है. बेंच जो है उन्होंने असेंबल नहीं हुए तो इसलिए हियरिंग नहीं हुआ. The center was responding to a petition to declare section 53(2) of Representation of People Act and Rule 11 read with Form 21 and 22B of the Conduct of Election Rules 1991 which apply to uncontested elections. ठीक है. uncontested elections मतलब अगर if I am standing मैं अगर इलेक्शन में खड़ी होती हूँ. ठीक है. if I am rolling for an election and if I don't have any other contestant मतलब मेरे opponent में अगर कोई नहीं है उसको ultra vires declare कर दे या फिर violating under the freedom of speech and expression under 91 है. Section 53(2) kicks in when the number of candidates equal to number of seats is filled by Lok Sabha elections. ठीक है. सो ये सेंटर को जो एक रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो है अनकंटेस्टेड इलेक्शन जो है अगर अनकंटेस्टेड इलेक्शन है क्या वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा ऐसा नहीं होता है. ठीक है. इन सच केसेस द रिटर्निंग ऑफिसर टू डिक्लेयर ऑल द कैंडिडेट्स एज ड्यूली इलेक्टेड बाय फिलिंग फॉर्म 21 and 21B in case of casual vacancy. ठीक है. The petitioner submitted that returning officer's declaration without conducting a poll prevented citizen from expressing. यहाँ पर क्या है जैसे कोई खड़ा नहीं है. ठीक है. यहाँ पर मेरे अपोनेंट में कोई भी नहीं है तो ऑप्शंस क्या है. नोटा भी तो एक ऑप्शन है ना. अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें अगर कोई भी मेरे अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ लेकिन नोटा भी तो एक ऑप्शन है ना. ये भी तो हो सकता है कि मुझे आप कैंडिडेट पसंद नहीं हो. ठीक है. आप मुझे पसंद नहीं हो और आपके अगेंस्ट में भी कोई खड़ा नहीं है so I'm going to vote for नोटा. नो. लेकिन what generally happens is अगर कोई अनकंटेस्टेड कैंडिडेट है वो क्या बन जाता है वो वहां से इलेक्ट हो जाता है. लेकिन नोटा का भी तो कुछ होता है ना कि नोटा क्यों है. जैसे कि अगर मुझे ये कैंडिडेट भी पसंद नहीं है ये कैंडिडेट पसंद नहीं है और ये कैंडिडेट भी पसंद नहीं है तो मैं नोटा को करूंगा. लेकिन इन केसेस वेयर अगर कोई भी कंटेस्टेड कोई भी अगर वो खड़ा हो रहा है वो अनकंटेस्टेड अगर खड़ा हो जाए तो क्या होता है वो नोटा भी इसमें काम नहीं होता है. जो कैंडिडेट है वो खुद ही बन जाता है. ठीक है. वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. मतलब इलेक्ट हो जाता है.
तो अबव ऑप्शन जो है ये भी तो हो सकता है ना कि नोटा, कोई किसी ने तो नोटा भी प्रेस किया होगा, मे बी शायद वो जो कैंडिडेट है वो उतना भी दे आर पीपल आर नॉट सेटिस्फैक्टेड विद दैट कंटेस्टेंट, और उनके अगेंस्ट भी कोई खड़ा नहीं हुआ है, तो वो उन इन दैट केस इलेक्शन शुड बी नल एंड वॉइड, ठीक है, कुछ और हमें सोचना होगा. But the government in the Election Commission of India responded that whether declaration of a sole candidate without taking a poll was a violation of the electoral rights to express their unhappiness by voting nota. तो क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं है कैंडिडेट तो आप नोटा में यू कैन प्रेस द नोटा का बटन. बट अगर उनको एक भी वोट आ जाए, अगर 99 नोटा के वोट लेकिन एक वोट इनको भी आ जाए तो भी तो ये कैंडिडेट वो ही हो जाएंगे ना. तो सेंटर ने एक एफिडेविट दिया है कि राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग में डिफरेंस है. राइट टू वोट इज अ मेयर स्टैट्यूटरी राइट एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग इज अ फंडामेंटल राइट. क्लियर, समझ में आया ये इसके रिगार्डिंग था. चलिए सेकेंड आर्टिकल पे जाए. अक्यूज शुड गेट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नोन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उनको बताया जाना चाहिए, ठीक है, उनको अच्छे से कन्वे करना होगा कि किस गलती के कारण उनको जो है अरेस्ट किया जाएगा. Supreme Court in a significant verdict on Thursday held that arrested person must be furnished with the ground of arrest in writing in a language they understand, irrespective of their nature of offense or stature involved. उनका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उनको बताना होगा, उनका मतलब आपको बताना होगा कि किस कारण से आपने उनको अरेस्ट किया इन द लैंग्वेज, इन अ लैंग्वेज जो उनको समझ में आए, ठीक है. द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस B.R. गवई एंड A.G. मासी held that grounds of arrest must be supplied in writing, उनको राइटिंग में देना होगा with a reasonable time and in case 2 hours prior to the production of arrestee before the magistrate to for remand proceedings. ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको उनको बताना होगा, एक रीजनेबल टाइम उनको देना होगा और उनको राइटिंग में देना होगा कि आपने क्यों उनको अरेस्ट किया है. Mere communication of the grounds in a language not understood by the person does not fulfill the constitutional mandate under Article 22 of the Constitution of India. सिर्फ आपने उनको मुंह से बोल दिया mere communication is not what needs to be happened. It is कि आपको उनको बताना होगा, उनको कन्वे करना होगा कि किस कारण से आपको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, ठीक है. In the case of non-compliance, the arrest and the subsequent remand will be rendered illegal and the person would be set free, the court directed. जस्टिस मसीह जो है उन्होंने ये वर्डिंग दिया. तो आपको उनको रिटर्न में देना होगा, राइटिंग में देना होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, वरना अगर आपने ऐसा किया है तो वो जो एलिजिडली जो अरेस्टेड है जो पर्सन है उनको आप क्या कर सकते, वो उनका जो अरेस्ट है वो इलीगल माना जाएगा और ही कैन बी सेट फ्री, ठीक है. आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड. तो ये आर्टिकल 22 जो है उनको अरेस्टेड और डिटेन्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन की यहाँ पे बात की जा रही है, उनको उनके लॉस को प्रोटेक्ट करता है. इसमें 2 पार्ट्स है, पहला तो है ऑर्डिनरी लॉ और दूसरा है 22B जो है या फिर 22 जिसको हम कहते हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है. क्लॉज 1 और 2 जो है ये आपको ऑर्डिनरी, अगर आप ऑर्डिनरी लॉ में अगर आप, ठीक है, नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ओके, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. जो ऑर्डिनरी लॉ के तहत अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको क्या क्या आपके राइट्स क्या क्या है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आपको पता होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल. ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है आपको एज सुन एज पॉसिबल बताना. फिर क्या है, सेकंड है राइट टू कंसल्ट एंड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस. तो आपके ओन चॉइस के जो भी लॉयर है आपको वो आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है, ये आपका राइट है. द फ्रीडम टू बी प्रोनाउंस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये है आपका ऑर्डिनरी लॉ के तहत अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है. और फ्रीडम ऑफ डिटेंशन बियॉन्ड अ पीरियड एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. अगर आप आपका जो है आपको डिटेन नहीं किया जा सकता बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड, जैसे 24 आवर्स होते हैं जनरली. अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तब आपको डिटेन किया जा सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आपको रिलीज कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है. तो ये ऑर्डिनरी लॉ है. प्रिवेंटिव डिटेंशन का इसका थोड़ा ज्यादा स्ट्रिंजेंट क्लॉज है, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. ये सारे राइट्स जो है ये आपको नहीं मिलेंगे अंडर दी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है. क्लियर हुआ. लास्ट इज
CAG plans to create 2 new cadres for more centralization. ठीक है, तो 2 नए cadres जो है ये बनाए जाएंगे. The Comptroller and Auditor General of India has granted in principle approval for the creation of 2 new specialized cadres for more centralization. Indian Audit and अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है ये नया 2 न्यू कैडर्स बनाएंगे, सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट एंड कैडर एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर, ये 2 कैडर बनाएंगे. ठीक है. एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, के सुब्रमण्यम और डेप्यूटी ऑडिटर जनरल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क said that specialization in a cadre of CRA and CA will deeper the domain of expertise of revenue and expenditure audit. तो जितना स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है, इसमें आप जनरलिस्ट नहीं स्पेशलिस्ट को लेंगे जिनको ऑडिटिंग के बारे में आइडिया है, वो लोग क्या करेंगे, उनके पास क्योंकि डीपर नॉलेज होगा तो वो बेटर डिसीजन जो है वो ले पाएंगे. ठीक है. दिस रिफॉर्म विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 एम्स टू बिल्ड डीपर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और इम्प्रूव करेंगे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है. आपको पता होगा ऑडिटिंग होता है राइट ऑफ योर जितने भी PSUs है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, राइट, ये सब होता है. देन अप्रोप्रिएशन है, फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन का भी एंड फाइनेंशियल जो रिलीज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सबको भी ऑडिट करती है राइट. तो इसमें क्या है, 2 न्यू सेंट्रलाइज्ड कैडर होंगे जो कि स्पेशलाइज्ड कैडर्स होंगे. ठीक है, ये और ज्यादा गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे. The CAG of India, as per Article 148 of the Constitution, heads the Indian Audit and Accounts Department (IAAD). ठीक है, ये आर्टिकल 148 के अंदर आता है. She is responsible for safeguarding the public purse and overseeing the financial system both at central and state level. ठीक है, तो both central और state level पे ही होता है. ठीक है. एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं एंड ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर आल्सो. ठीक है. Parliamentary laws, financial administration, it is one of the key pillars of the Indian democratic system along with Supreme Court, Election Commission of India, UPSC and CAG. ये 4 जो है these are the 4 bodies. ठीक है, 4 pillar of the Indian Constitution, Supreme Court of India, Election Commission of India, UPSC and CAG. ठीक है, ये बहुत मेजर है, ये 4 है. ठीक है. CAG is governed by the Comptroller and Auditor General's Condition of Service Act 1971 with significant amendments in 1976, 84 and 87. ठीक है. CAG जो है अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द वारंट ऑफ हिज हैंड्स और वो जो है 6 साल या फिर 65 इयर्स तक के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो टर्म ऑफ 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स तक के लिए वो whichever earlier, अगर 65 के हो गए तो रिटायर होंगे या फिर 6 साल हो गए तो वो रिटायर करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत मेजर है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कैट के बारे में वैसे भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेवरेट पोर्शन है यूपीएससी. ठीक है. With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and